Right. Namaste. Welcome to our third day, the Kolkata Vyasa Shwasko Shuddhi Kriya program. And first 2 days आपने कर लिया huffing technique, complete yogic breath. I trust that is clear to you. उसमें कोई questions हैं आपको? Any doubt? Did you practice on your own? Did you see कुछ भी gray areas हैं? If anything doesn't, if anything needs clarification, कुछ है वैसा कि सब clear है? सब clear है? We have to practice it more. Now we are practicing 10-15 minutes. We have to practice more times. 10-15 minutes is enough. ज्यादा करने का करेंगे तो फिर it will become like a weight, you know, फिर वो हिम्मत नहीं होगा कि इतना समय कैसे दे. 10-15 मिनट बहुत है. रेगुलरली आप 10-15 मिनट्स कर लीजिए. उसके बाद थोड़ा प्राणायाम वगैरह करते हैं तो करिए. And Krishna flute, how much minute? Krishna flute. See, Krishna's flute, यदि आप खाली Krishna's flute करते हैं तो do 10 rounds of Krishna's flute for huffing, complete yogic breath, and what I will share today. Today's technique is the most powerful. आज जो सिखाऊंगा अभी आप देखोगे वो करने से the effect is even better than what you experienced yesterday and day before. But वो तो experience होएगा. अभी थोड़ी देर में सिखाता हूं मैं आपको. But first I just want to understand कि पहले 2 parts that is very clear. उसमें आपको कोई भी तरह की doubt, कोई भी तरह के questions हो तो we'll deal with them before. आज attendance इतना कम क्यों है? Anyway, कोई डाउट नहीं है? Are we clear? सोमा जी, मंदिरा जी, किंकर जी, फतिमा जी, अनूप जी, सब क्लियर? वेरी गुड जी, क्लियर एकदम. वेरी गुड. प्रैक्टिस किया था आपने? थोड़ा कफ निकला? सुबह किया था सर. थोड़ा कफ निकला? खांसी हो रही थी. खांसी हुआ था और कफ निकला? नहीं, कफ निकला थोड़ा? कफ नहीं निकला? ठीक है. गार्गल करते तो कफ थोड़ा और क्लियर हो जाता. वेरी गुड. किंकर जी, आपका कफ पहले निकल रहा था, अभी कैसे है? नो, एट होम मैंने सिर्फ योगिक ब्रेथ किया था मॉर्निंग को थोड़ा. सो हल्का सा कफ आया था, हल्का सा. हफिंग मैंने नहीं किया आज. ओके. हफिंग इज आल्सो गुड. Huffing is a good technique to start if you have a lot of kapha in the system, or if you have kapha in the system. It's good to start with that. Yes. Complete yogic breath is a little gentler, but it's good for cleansing anyway. Also, like I said yesterday, kabhi sardi jukham yadi ho, it will help you to breathe better. So that is very good. Right. So shall we spend time on that? Shall we do that once again today? The huffing technique and the complete yogic breath? Or shall we move on? What would yes, you like? sir, we can do. एक बार repeat कर ले. ठीक है. Yes. So let's do 3 rounds. We will not do too much, but 3 rounds, starting with the huffing technique, just the plain huffing technique, then with a gentle squeeze, and then 3 rounds with the Krishna's flute maneuver. Then we will do 3 of complete yogic breath. ठीक है? So keep your belly relaxed. Take a full deep breath. पेट जितना रिलैक्स रख के करोगे उतना आपका ब्रेथ डीपर होगा या बिगर ब्रेथ होगा. The size of your breath will feel as if it's bigger. And go. Stop. Relax the belly. Again. Stop. Relax the belly. Again. Repeat. Again. Breathe in. Again. Relax the belly. Again. Relax the belly. Repeat. Again. One more time. In. Sorry. थोड़ा कफ निकला. So one more time.
Take a slow deep breath. Relax the belly. Again. Relax the belly. One more time. Again. In. ये करने के बाद कभी कभी जो खांसी आती है, if you want to cough, that means something is getting dislodged. कहीं से कुछ अपने जगह से हट गया, बाहर निकलना चाहता है. Throw it out. Very good. हाँ, ये अनूप जी बहुत अच्छा है कर रहे हैं with his tongue sticking out. That is also a variation you can do. So शुरू में when I used to teach the श्वास को शुद्धि क्रिया, it was a little more complicated, if I can use the word, or a little more advanced in a sense. Then I said कि इतना करने का आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी cleansing शुरू हो जाएगा तो it is good. But yes, जैसे अभी अनूप जी कर रहे थे, you can actually stick your tongue out and do the same huffing. Take the full deep breath and stick your tongue out and go. Relax the belly. Relax the belly. So 3-4 बार. So in that sense, this one becomes like the Singh asana. Is that the one? वो जो एक जो क्रिया कल परसों शायद बता रहे थे, some of you were mentioning. So this is combining that with the श्वास को शुद्धि क्रिया. सिंहासन से. सिंहासन ना, हाँ, तो उसके साथ में कंबाइन करेंगे श्वास को शुद्धि क्रिया, इवन मोर पावरफुल. म्यूट कर लीजिए, आई थिंक बहुत आवाज है कहीं से. मंदिरा जी की, यू हैव डॉग्स एट होम? उन्हीं की आवाज आ रही थी. ठीक है. ओके, वेरी गुड. नाउ द सेम थिंग विथ जेंटल स्क्वीजेस, जहां से आपको लगता है थोड़ा कंजेशन है, so just add a little squeeze in that area. If you like Anup ji was doing just now, stick the tongue out. When you ये जो जीभ को बाहर निकालते हैं, जीभ को मूव भी कर सकते हैं, कभी साइड में एक तरफ, कभी एक तरफ. देखने में लगेगा कि ये पागल है या कुछ वैसा लगेगा, किंतु डजंट मैटर बिकॉज वो क्लेंजिंग बहुत अच्छी होगी. जीभ को एक तरफ टानेंगे, पुश करेंगे और ऐसे करेंगे तो जैसे दिखाता हूं आपको. ये कर सकते हैं. मैं इस पे आजकल ज्यादा नहीं करता हूं बिकॉज नॉट मेनी पीपल लाइक टू प्रैक्टिस दिस. तो ठीक है, जितना भी कर लीजिए, कम से कम वो क्लेंजिंग मोशन शुरू हो जाएगा. नाउ 3 more times just with the squeezes in different areas. सॉरी, देखिए मेरे को कफ निकल रहा है. टेक अ स्लो डीप ब्रेथ. जितना पेट को रिलैक्स करके लेंगे उतना डीप ब्रेथ आएगा आपका. Squeeze on one side, squeeze on another side. That motion pushing up the spine. One more time. अपने आप करिए. I will not tell you. Do it on your own. सोमा जी करिए. मंदिरा जी, खांसी आ रही, थ्रो इट आउट. खांसी आ रही माने यहाँ पे कुछ अटक रहा है, ऐसे क्लियर कर लीजिए. थ्रो इट आउट. वेरी गुड. अपने आप करिए एक बार. जस्ट डू इट ऑन योर ओन. एंड देन आफ्टर दैट वी विल ऐड द कृष्णा's flute maneuver. Ready? Ready? Shall we go for the Krishna's flute maneuver? चलिए, टेक अ स्लो डीप ब्रेथ. और जब हफिंग करेंगे,
अलाउ द फर्स्ट हाफ, कुछ मत करिए. सेकेंड हाफ से स्क्वीज इन द मूलाधार. उसके बाद मूलाधार स्वादिष्ठान. आपको कई बार बता दिया, आप समझ गए हो. चलिए करिए. फुल स्लो डीप ब्रेथ. सॉरी. तो जितना जितना प्रेशर चाहे लगा सकते हैं, बट फर्स्ट लिसन टू योर बॉडी. यदि आपका बॉडी प्रेशर सह सकता है तो धीरे धीरे बढ़ाते जाइए उसको. पहले दिन जितना किया उससे थोड़ा सेकेंड डे बढ़ा सकते हैं, एज लॉन्ग एज योर बॉडी इज एबल टू एक्सेप्ट इट. बॉडी यदि उसको रिजेक्ट करता है, बॉडी इज नॉट कंफर्टेबल, डजंट मैटर, वेट. थोड़े दिनों बाद में फिर से ट्राई करिएगा. धीरे धीरे बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी. जितना आप ये करेंगे, जितना इस तरह से एक्सरसाइज कराएंगे लंग्स को, लंग्स का फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी विल इंप्रूव and capacity will improve. Lung capacity will also improve and its flexibility or elasticity will improve. It's a very good way to, जो फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उसको थ्रो आउट कर दिया और लंग्स को हेल्दी बनाया. जी एक अनुज. क्वेरी है सर, ब्रीदिंग जो ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट 4 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है. लंबा ब्रीदिंग नहीं, ओनली 4 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है. इज इट राइट और वी हैव टू टेक मोर? देयर इज नो ब्रेथ में कोई फिक्स्ड हो नहीं सकता, क्योंकि सबका अलग अलग हेल्थ है, अलग अलग तरीका है, हैबिट्स हैं, एटसेट्रा. किंतु आप अपने बेली को रिलैक्स करेंगे तो आप मैंने टाइम तो नहीं किया कभी एज सच, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू आर ब्रीदिंग. आप तो एक यदि बार आप ऑब्जर्व करके बताइए कि स्लो ब्रीदिंग हम करेंगे बेली रिलैक्स करके, हाउ मेनी सेकंड्स एटलीस्ट? हाँ, तो स्लो में तो काफी देर कर सकते हैं. अभी देखिए, आप मेरे को ऑब्जर्व करिएगा. आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हेन आई से, व्हेन आई नॉट लाइक दिस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके. Almost 13 seconds. There we go. स्लो ब्रेथ में व्हाई डू आई से स्लो ब्रेथ, व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि जब अपने फास्ट करने जाते हैं तो बॉडी में एक टेंशन बिल्ड होता है, Okay. जिससे आपका वो द क्वांटिटी ऑफ ब्रेथ इज यूजुअली, और जब स्लो करके जाते हैं तो योर बॉडी इज एबल टू एक्सेप्ट मोर ब्रेथ, क्योंकि आपके बॉडी में टेंशन बिल्ड नहीं हुआ. सो यू आर एबल टू इनहेल मोर. ज्यादा इनहेल करेंगे इसका मतलब लंग्स के ऊपर में उसका ज्यादा एक्सपेंशन हुआ. सो इट विल हेल्प योर लंग्स टू बिकम हेल्दियर by that movement. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. इससे लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी. आप नोटिस करो, lot of people as they grow older, lung capacity reduces, lung का ability to respond with elasticity reduces. It has a very bad effect. लोगों को lung related बहुत सारी issues होती हैं. Unfortunately, there are so many practices for so many things, but lungs के लिए other than pranayam there is very little. और प्राणायाम भी आजकल फिर भी ज्यादा लोग करते हैं, बट पीपल डोंट पे अटेंशन टू द लंग हेल्थ. इसीलिए मेनी पीपल एज दे ग्रो ओल्डर, यदि कोई भी मेडिकल कंडीशन हुआ, हॉस्पिटल गए, तब तो वेंटिलेटर तो ऑलमोस्ट गारंटीड है. वेंटिलेटर का तो काम हो ही जाएगा उनका. सो व्हाई इफ वी कीप आवर मैंने अभी लंग्स, देखा, आई नो सर, अनुलोम विलोम करते हुए आई कैन टेक 15 सेकंड. देयर वी गो. अनुलोम विलोम में, बट इसमें बोथ नोज से करने से 15 सेकंड जा नहीं रहा है. हाँ, इफ आई टेक डजंट मैटर. ब्रीदिंग 2-3 टाइम्स, एक ब्रीदिंग लिया, फिर ओढ़ लिया, then this 15 seconds. जैसे there are some techniques that allow this.
कि एक बार में लिया, फिर थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा और ले लिया। आप ट्राई करिए, बट ऑब्जर्व योरसेल्फ, ओके सर। ऑब्जर्व योरसेल्फ कि इसमें आपका क्या इफेक्ट होता है। यदि आपको लगता है कुछ ठीक नहीं है तो रिड्यूस इट, डोंट डू सो मच और डोंट डू इट एट ऑल। और यदि आपको लगता है कि इससे कुछ अच्छा बेनिफिट हो रहा है, कंटिन्यू। बट एक बार में लेते तो इट इज ऑलवेज बेस्ट इन माय अंडरस्टैंडिंग। जो योग से कनेक्टेड है, प्राणायाम से कनेक्टेड, दे यूजुअली स्पीक ऑफ वन फुल ब्रेथ। चलिए फिर से लीजिए पूरा डीप ब्रेथ, फुल डीप ब्रेथ, स्लो, belly relaxed, and then go, पूरा निकल गया, wait, relax the belly, again squeeze at the muladhar, then muladhar swadhisthana, muladhar swadhisthana manipura, 1 2 3 4, 1 2 5, again in. See, today my body is also creating or expelling more phlegm than yesterday and day before. मंदिरा जी का भी निकल रहा है, आई थिंक किंकर जी का भी निकल रहा है, सोमा जी का भी थोड़ा निकला है, वेरी गुड। चलिए फिर से स्लो डीप ब्रेथ, रिलैक्स द बेली, हफ, रिलैक्स द बेली, स्क्वीज मूलाधार, मूलाधार स्वादिष्टान, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 5, in. Sorry. So see how kapha comes up, wants to get expelled. Very good. एक बार फिर से कर लीजिए, full deep breath, slow breath, and go. Relax the belly. Again, squeeze Muladhara. Muladhara Swadhisthana. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 8. Yeah. So this is the huffing technique. Now let's move to the next part, complete yogic breath. What must you do? Somebody tell me. I think one of you should guide now. One of you, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे करो, one of you should do it. Who wants to do it? हाँ, चलिए, अनुप जी करिए. Sir, now we will take deep breathing and we will exhale the breathing. After that, we will start Krishna's flute. We will squeeze the Muladhar. Then we squeeze Muladhar and Swadhisthana. Then we squeeze Muladhar, Swadhisthana and Manipura. Then Muladhar, Swadhisthana, Manipura and Anahat Chakra. Then Muladhar, Swadhisthana, Manipura, Anahat and Visuddhi Chakra. ये आप थर्ड स्टेप में पहले क्यों चले गए? पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप योगिक ब्रीदिंग है, डीप. वही वाला करिए पहले, उसको गाइड करिए. गाइड करिए अनुप जी, हाउ टू डू द ब्रीदिंग करने के बाद वी हैव टू एक्सहेल फुल ब्रीदिंग. नहीं, योगिक ब्रीदिंग में क्या करना है? व्हाट आर द थिंग्स टू पे अटेंशन टू?
We have to pay attention that it is going from our spinal cord till the Mooladhara. No, no. The in breath is not going down from the spinal cord. The in breath is coming down normally जैसे आप लेते हो. You fill up the pelvic area और धीरे धीरे जितना नीचे जाता है आपका ब्रेथ उसको भरते 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 ऊपर तक भरेंगे. Okay. जब वो पूरा भर जाएगा लोवेस्ट पोर्शन यदि हो सकता है टेल बोन से आप अलाउ करेंगे एक्सहेल अप द स्पाइन. Up the spine. Okay. चलिए गाइड करिए फिर से. गाइड एवरीवन प्लीज. We are taking a breathing normally, filling the breathing from belly to up and up until the shoulders. And after this, exhale will be from the tailbone via the spinal cord fully. So everybody should start. चलिए प्लीज स्टार्ट. How many cycles of this? 3 cycles. Exhale कैसे होगा? Exhale, we will squeeze Mooladhara first. That is the third step, no? First step. Okay. Or if you like, you can do a First second we step. are doing inhaling. We are doing exhaling from the tailbone to spinal cord. Third step, we are going Mooladhara squeeze. No. 1 second. The first part of the complete yogic breath, जब आपका exhale होता है, like in the huffing technique, allow the first exhale, relax the belly, Relax the belly. allow a second exhale, relax the belly, allow a third exhale, relax the belly. तो 3 4 5 जितने बार होता है रिलैक्स करके 3 4 बार कर लीजिए उसको. उसके बाद में breathe again, Yes. take a full deep breath, allow the first exhale, Yes. second exhale, Yes. third exhale, Yes. fourth exhale. ये do this 3 4 5 times. उसके Okay. बाद में start with a little squeezes in different parts of the lungs, especially जहां पे कुछ congestion लगता है. ठीक. And then you start the Krishna's flute maneuver. है ना? Sure. चलिए वेरी गुड. चलिए गाइड करिए. अनूप जी बताइए. So we are doing normal yogic breathing. We will inhale as deep as possible and bring the air till the shoulders. Then we will release, exhale from the tailbone via the spinal cord. We will do second exhale. We will do normal third exhale. As many exhale we can do, we will do. Again, we take the breathing and we do the exhaling like this. After these 4 5 cycles, we will try for squeezing like in Krishna's flute. And any stress in any part of this system, we will try to squeeze that part also. Was it nearby, sir? हाँ nearby, yes. Very good. चलिए करिए. तो अनूप जी करते हैं थोड़ी देर. उसके बाद में somebody else can also do. Very good. चलिए अनूप जी You are करेंगे. able to see me? I You can are see. able to see me clearly? Can sir? everybody see Anup ji? Yeah. Kinkar ji is saying yes. Soma ji is saying yes. Yeah. Go on, Anup ji. Can anybody feel any heat in the I have done 5 Mooladhara? exhales. I have done 5 Five. exhales. Could you see all of you? Again, second exhale I'm taking. Inhale I'm taking. I did this time 7 exhales.
It was better than earlier. Okay, very good. बहुत अच्छा. Again, I'm taking inhale. नमस्कार अनूप जी, आप क्या बीच में इनहेल कर रहे हैं क्या? नहीं, बीच में इनहेल नहीं कर रहा. मैं इनहेल एक बार ही किया, बाद में मैं जोर लगा करके बेली को रिलैक्स करते हुए एक्सहेल कर रहा हूँ. अच्छा. थर्ड टाइम आई डिड एक्सहेल फॉर 10 times. अरे वाह, very good, very good. Now I am But- enjoying it. now you're enjoying it. अब आपको एक meditative sensation लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा. Very good. लग रहा है अभी कि नहीं वैसा? आया, उसके बाद में आएगा. ठीक है, very good. अच्छा, very good. अनूप जी, now somebody else do the second part. Somebody else Yes. guide the second part. कौन करना Sure, चाहेगा? sir, sure, sir. Who wants to do it? Who wants to guide for the second part? चलिए, somebody offer. सोमा जी, चलिए आप कराइए second part. ओके सर, फर्स्ट पूरा ब्रीथ लेंगे हम फुल, एंड देन हम ब्रीथ एक्सेल करेंगे. फिर फर्स्ट क्विज फ्रॉम मूलाधार, सर. Sorry? This is the third one. Second one is ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. Jump to the third one. This is the Krishna's flute. ओके ना सर, पूरा ब्रीथ एक्सेल करने के बाद टेल बोन से थ्रू हम ब्रीथ के निकालेंगे. फिर स्क्वीज करके मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, एंड फिर मणिपुर चक्र, और फिर अनाहत चक्र को स्क्वीज करके ब्रीथ को एक्सेल. Okay, everyone, please follow Soma ji. एंड फिर ब्रीथ लेंगे हम. ओके सर, थैंक यू सर. If anyone has any question, किसी को कोई प्रश्न हो तो पहले सोमा जी से पूछिए. सोमा जी आपको जवाब देंगी. यदि उसमें कोई गलती या कुछ रही तो I will correct it. But otherwise, Soma ji will answer. Any question, anybody? Address it to Soma ji.
How many cycles have you done? कितने साइकिल कर लिए इसके? Sir, I have done 3. You've done 3? Okay. Sir, I So- have one kind of Hmm. when I do this yogic breath, Krishna's flute maneuver. जी. So when I take one deep breath, then Hmm. I squeeze the Muladhara area, then I exhale, then without taking another breath, so again I No, squeeze no. No. The exhalation combines with the squeeze. Yes. साथ में करना है दोनों. Yes. हाँ. But सर then again without taking another करेंगे एक बारी, Inhale एक बार. एक बारी, फिर एक्सेल करना है, फिर मूलाधार चक्र स्क्वीज करके एक्सेल एंड Yes. फिर स्वादिष्ठान एंड फिर मणिपुर चक्र स्क्वीज करके No. और हाँ One second. ओके So पहला exhale हो गया, हाँ खाली हो गया. ओके फिर सेकंड एक्सहेल में मूलाधार को स्क्वीज करेंगे. स्क्वीज करना है फिर जब स्टमक को रिलैक्स करेंगे तो स्क्वीज को भी रिलैक्स करेंगे. ओके फिर मूलाधार और स्वादिष्ठान स्क्वीज करेंगे. स्क्वीज करेंगे फिर दोनों को रिलैक्स करेंगे, बेली को भी रिलैक्स करेंगे. ओके फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा तीनों को करेंगे. तो इस तरह से करके सुषुम्ना में जो है आप उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करते हो. ये पुशिंग by doing this pushing through the squeeze release और स्क्वीज को कैसे करते हो? पहले नीचे किया, फिर नीचे और ऊपर किया, फिर उसके और ऊपर किया. तो ये करने से वो उसको बहुत सुंदर क्लेंजिंग मिलती है. सुषुम्ना गेट्स वेरी ब्यूटीफुली क्लेंज्ड. सर एक बात, जब मैं स्क्वीज करती हूँ मूलाधार, स्वादिष्ठान या मणिपुर, फिर ट्राई करती हूँ अगेन करने के लिए, तो मेरा बॉडी बेंड हो जाता है. ये क्या सही है या गलत? बॉडी पेन हो रहा है. बेंड हो जाता है जैसे Bend. स्क्वीज करके एक्सेल Okay. करती हूँ, ओके, बेंड माने सामने आ जाता है. सामने आ जाता है. तो आप कॉन्शियसली आप सीधे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्राई टू स्टे स्ट्रेट. हफिंग टेक्निक में तो बॉडी आगे आता है नहीं, बिकॉज वो प्रेशर डालते हैं हफिंग करने में, सो द बॉडी टेंड्स टू मूव टू द फ्रंट. सही है, किंतु कंप्लीट योगिक ब्रेथ में बॉडी आगे आने की आवश्यकता नहीं है. तो आप आराम से बैठ के करिए. अब Sir, इसमें क्या? बोलिए किंकर जी. my issue in this Krishna's flute maneuver, so by taking one breath, then doing so many exhales, like first Muladhara, then Muladhara, Swadhisthana, then so many exhale, it is a little difficult for me. I find I lose breath completely after 2-3 exhales. तो इसका दूसरा तरीका है, सिंपल तरीका. फर्स्ट स्क्वीज मूलाधार स्वादिष्ठान कर लीजिए. सेकंड स्क्वीज मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा अनाहटा कर लीजिए. थर्ड स्क्वीज ये चारों प्लस विशुद्धि कर लीजिए. Okay. यू स्टिल हैव सम मोर ब्रेथ, सबको एक बार फिर से कर लीजिए. सो यू कैन वर्क इट आउट दिस वे. यू गेट सिमिलर रिजल्ट्स. सर मतलब द सेम थिंग इज हैपनिंग टू मी. मतलब कि मूलाधार से स्वादिष्ठान ठीक है, मणिपुर ठीक है, अनाहत जब मतलब कि अनाहत में ना थोड़ा सा दम निकल रहा है, मतलब दम नहीं आ पा रहा है. तो मैंने तो कल भी आपको नोटिस किया था, क्योंकि आप अच्छा प्रेशर लगाते हो जब आप करते हो ना, इवन विथ योर हफिंग टेक्निक, यू डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग हफिंग. सो इट्स ओके, वो आपका है. तो अब आप क्या करोगे, यदि आपको लगता है 3 या 4 एक्सहेल में पूरा हो गया, तो लाइक आई जस्ट टोल्ड किंकर जी, पहला स्क्वीज मूलाधार मणिपुर, मूलाधार स्वादिष्ठान, सेकंड स्क्वीज मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा, इस तरह से कर लीजिए. अच्छा, 2-3 एक साथ से ऑल टुगेदर 2 और 3. ठीक है सर, थैंक दिस इज वेरी गुड. सोमा जी थैंक यू सो मच. अनूप जी थैंक यू सो मच, आपने ये वाला एक्सप्लेन किया. वेलकम सर. Now let's go to the third part, which is the most powerful part of this technique.
but I don't want to go straight to that because थोड़ा सा पहले cleansing हो जाएगा, because this one includes what is called अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन. नाड़ी शोधन means something that cleanses the nadis, जो नाड़ी को साफ करता है. Start by doing this. ये first two fingers at the base of the thumb. यहाँ पे ले आइए. दिख रहा है क्लियर? अब ये टर्न करके थंब राइट नॉस्ट्रिल पे, और इसको हटाते तो रिंग फिंगर टू द लेफ्ट. एक हटता है, दूसरा आता है. एक बार ट्राई करिए. एक हटता है, दूसरा आता है, एक हटता है, दूसरा आता है. वेरी सिंपल. यही मूवमेंट अपन को करते रहना है. तो एक बार ऐसे करके राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके लेफ्ट से आउट ब्रेथ एक्सहेल करिए. जब वो पूरा एक्सहेल हो गया, लेफ्ट से इनहेल करिए. लेफ्ट को ब्लॉक करिए, राइट से एक्सहेल. पूरा एक्सहेल, राइट से इनहेल करिए. पूरा इनहेल, राइट को ब्लॉक, लेफ्ट से एक्सहेल. पूरा एक्सहेल हो गया, लेफ्ट से इनहेल करिए. लेफ्ट को ब्लॉक करिए, राइट से एक्सहेल. पूरा एक्सहेल हो गया, राइट से इनहेल. राइट को ब्लॉक, लेफ्ट से एक्सहेल. सबका हो रही है अच्छे से. सो दिस इज द बेसिक अनुलोम विलोम. इस बेसिक अनुलोम विलोम पे वी विल डू द श्वास को शुद्धि टेक्निक. सर बेसिक में हम लोग लेफ्ट से पहले स्टार्ट करते हैं, आपने राइट से आई एक्सप्लेन. ना ना, पहले लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, लेफ्ट से इनहेल करते हैं. फिर यू स्टार्ट बाय पहले लेफ्ट से एक्सहेल, और रिमेंबर द थंब रूल. जिससे एक्सहेल करेंगे उससे इनहेल करेंगे, जिससे इनहेल करेंगे उसके दूसरे वाले से एक्सहेल करेंगे. पहले एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर दूसरे वाले से एक्सहेल, उसी से इनहेल. यस सर. Are we clear? The basic thing, this is the basic Anulom Vilom. Be clear about this. Now we will add the Shwas ko Shuddhi Kriya. Shwas ko Shuddhi Kriya mein what are the first elements you have to do? जब आप exhale करोगे, पहला exhale हो जाएगा, आप wait करोगे, continue to exhale some more. Again wait a little, exhale some more. Keep your back straight. फातिमा जी, आपका गला मुड़ा हुआ है, वो ठीक नहीं है. कीप योर बैक, नेक शुड बी स्ट्रेट, बैक शुड बी स्ट्रेट. ये ऐसे नहीं होना चाहिए, सीधा रखिए फेस को. कंफर्टेबल स्ट्रेट, स्टिफनेस नहीं, वी डोंट वांट एनी स्टिफनेस. नाउ ब्लॉक द राइट, एक्सहेल विद द लेफ्ट. एक पूरा चला गया, वेट, एक्सहेल सम मोर. पूरा चला गया, wait, exhale some more. Now inhale with the left. Block the left, exhale with the right. पूरा चला गया, wait, exhale some more. Wait, relax the belly, exhale some more. Inhale with the right.
block the right, exhale with the left. पूरा चला गया, बेली को रिलैक्स, एक बार फिर से पूरा चला गया, फिर से वेट करिए, थोड़ा और एक्सेल, एक बार और, इनहेल विद द लेफ्ट, block the left, exhale with the right. पूरा चला गया, वेट, रिलैक्स द बेली, थोड़ा और एक्सेल करिए, रिलैक्स बेली, अगेन, inhale with the right, block the right, exhale with the left. पूरा चला गया, wait, relax belly, exhale some more, relax belly, some more, again, breathe. This is the first part of the Anulom Vilom or the Nadi Shodhan with the Shwaskosh technique. Clear हुआ? एक बार अपने आप करिए. I will not guide you. Please do on your own. Start by blocking the right. Exhale with the left. I will not guide. अपने आप करिए आप. यदि कोई डाउट होगा तो पूछिएगा. सर कितना टाइम करना पड़ेगा ये? कितना टाइम मीन्स? सर 5 मिनट्स और 3 मिनट्स वो बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ. तो पहले आप खाली इसको करिए जिस तरह से बताया. टेक्निक को समझ जाइए पहले. टेक्निक आपको क्लियर हो गया? पहले फर्स्ट एक्सहेल, स्टॉप, बेली को रिलैक्स करिए, फिर थोड़ा और एक्सहेल, फिर बेली को रिलैक्स करिए, थोड़ा और एक्सहेल, ये करिए, फिर इनहेल विद दैट सेम, दूसरे से एक्सहेल करिए, सेम प्रोसेस. ये हो गया आपका, अच्छे से हो गया. तो नॉर्मली मैं सब चीज के लिए 5 टाइम्स रेकमेंड करता हूं, बट जो कृष्णास फ्लूट मनूवर है उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा रेकमेंड करता हूं, विच आई विल कम टू लेटर, वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं. तो यदि आप अभी खाली जो ऑर्डिनरी वाला कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप का जो कर रहे हो, इसके 5 साइकिल्स, दैट इज ओके. ओके, फिर सेकंड में आते, फिर थर्ड में आते हैं. Sir, one question, sir. हाँ शुरुजीत जी. Sir, what is the difference between Alom Bilom and Nari Shodhan? Very good. Basically, most people think it is the same. Some people say in Nadi Shodhan, you hold kumbhak. There is kumbhak. When there is no kumbhak, we call it Anulom Vilom. When there is kumbhak, we call it Nadi Shodhan. That is it. This is the basic difference that most people seem to agree on. लैंग्वेज में क्या होता है ना, टेक्निक्स थोड़ी
ओवरलैप करने लग जाती हैं. You know, people as you go along, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. Language keeps changing. Language आप नाम कुछ भी दे दो. What you do is important. How you do, that is important. How does name does not matter. But since we are dealing with this, तो अपन ने दोनों के बारे में बता दिया so that there is clarity कि ये अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में बेसिक डिफरेंस that some people speak of is कि एक में थोड़ा कुंभक होता है, एक में कुंभक नहीं होता है. Okay, clear? First part is clear, no issues. Very good. Now, second part, same thing. Start by blocking the right, exhaling with the left. First exhale, relax belly. Second exhale, relax belly. Now, if you like, you can do a little squeezing in a different part of the lung or different part of your body. In with the left. Block the left, out with the right. पूरा निकल गया. Wait a minute. Continue. Squeeze in some part of your body, lungs. In with the right. Block the right, out with the left. पूरा निकल गया. Relax. Let the belly loose. Now squeeze anywhere you like. In with the left. So this squeeze anywhere you like. It has a purpose. जहां पे आपको लगता है कि कुछ कंजेशन है, यदि आवाज जब ब्रेथ ले रहे थे, कफ हफिंग कर रहे थे, if you felt there was a sound coming from a certain part of the chest, certain part of your lungs, उस एरिया में थोड़ा स्क्वीज करेंगे, it will help to dislodge. जो कारण से वहां से आवाज आ रही है, वहां पे जो भी फ्लेम कफ वगैरह जो भी अटका है, वो वहां से डिसलॉज होगा, हिल जाएगा वहां से. But as you continue to breathe, it will start moving out. It will want to come out. तो यहाँ में आके अटकेगा, यहाँ पे थ्रोट पे लगेगा कुछ है. कभी कभी होता है, you want to clear your throat, you do you do this or you cough, to throw it out. वो करके उसको निकालिए. तो do the squeezing on your own. This part is not the most important part. However, I recommend sometimes be aware, use कर लीजिए. But now we will jump to the most important part of the whole program, the Anulom Vilom with the Krishna's flute maneuver. So Krishna's flute maneuver आपको clear है. You've done it with the huffing technique. You've done it with the complete yogic breath. Now you will do the same thing with the Anulom Vilom. The only difference is now you will start by first exhaling with the left. Allow the first exhale. Now the second exhale, you will squeeze the Muladhar with the left. Relax. Muladhar, Swadhisthana. Muladhar, Swadhisthana, Manipura. 1 to 4. In with the left. Block the left. Out with the right. All gone. Relax belly. Muladhar, Krishna's flute 1. Krishna's flute 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. In with the right. Block the right. Out with the left. All gone.
Relax belly. Krishna's flute 1. Krishna's flute 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. In. जल्दी करिए शुरुजीत जी, करिए, don't stop. Very powerful technique. 3-4 राउंड करिए and then see immediate difference in the quality of your breath. Like a magical effect it has on your breath. Sir, after exhaling, you have to squeeze, no? Sir, after exhaling. नहीं सुरुजीत Please, जी. can you please repeat, sir? Can you please repeat, sir? I didn't get you properly. No, but this is the same as huffing technique and complete yogic breath. The squeezing is done with the exhale, not before or after. The squeezing has to accompany the exhale. आप ये 3 दिन बाद में ये बात पूछ रहे हो मेरे को सुरुजीत जी? Sir, मतलब इन अनुलोम विलोम में ये प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, मतलब कि नहीं तो हफिंग क्यों प्रोसेस. प्रॉब्लम है? I told you before only. This is the same as in the other techniques. The basic system is the same. You will do the Krishna's flute maneuver with the exhale. चलिए फिर से ट्राई करिए. किसका हो रहा था अच्छे से? Soma ji, did you notice an immediate change in your breath? Your breath felt much lighter. हाँ सर, लाइट हो रहा है. हाँ करिए, अभी तो शुरू किया. Sir, I did also, Hmm. but what I found is, like when I exhale, first exhale is, I mean, it was easier. Then I had to push some pressure on my stomach gradually more. Hmm. Is that right? Yes, as long as it's comfortable. यदि आपको discomfort लगता है, slow down. I use a lot of pressure. My body can accept the pressure. Okay. So I'll show you again. See, I blocked the right, exhale with the left. First gone. Krishna's flute 1. Krishna's flute 1, 2. Krishna's flute 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. In. Block left, out with the right. All gone. Relax belly. Squeeze Krishna's flute 1. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. In. Block the right, out with the left. All gone. Krishna's flute 1. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. In. Sir, now I got you, sir. Hmm. Thank you, sir. Hmm. Okay, sir. Okay, very good. देखिए, see the change in the quality of your breath immediately. Your breath feels so much lighter. देखिए, try करिए. Do 5 cycles and then see. करिए non-stop 5 cycles. अब do it on your own. I will not tell you now. Do it yourself.
पापिया रोहित जी, आप नहीं कर रहे हो? सर 3 टाइम्स अभी किया तो हम्म। थोड़ा ऐसे हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट करके आपको देखा जो कैसे। ठीक है। ठीक है, ठीक। ओम 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 अनूप जी, आनंद आ गया? ओम Yes, Kinkar ji. So it's very strong. Very The strong. flow of air through the the flow of So air you through the nostril is very strong, and a lot of cough is coming. okay, and your breath must be feeling much easier, much Very lighter. light. Very light. Very good. Soma ji is nodding her head, है ना? देखा ना magic. थोड़ा बताइए किसको क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा, बताइए, शेयर करिए। पर सर मेरा तो नोस से इधर पूरा एकदम हल्का हो गया और एकदम पूरा क्लियर। वेरी गुड। सर्दी नहीं था, फिर भी लगता है पूरा एकदम क्लियर हो गया। और ऐसे ब्रेथ एकदम लाइट हो गया। ब्रेथ तो पहले नहीं हो रहा था, 1 to 5 जो है वो नहीं निकल रहा था। अभी थोड़ा हो रहा है, निकल रहा है। अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, देखिए फिर क्या होता है। थोड़ा इजी हो रहा है। जी ठीक है सर। हाँ सोमा जी, आप कुछ बोल रहे थे।
ब्रीदिंग एकदम इजी हो रहा है सब एकदम इजी, एकदम खुल गया। एकदम हाँ, मैजिक। सर हाँ, सर Yes. बहुत क्लियर हो गया। डिफरेंट। बहुत क्लियर हो गया एकदम अफरोजा। सर। हाँ, बहुत हाँ। फर्स्ट टाइम समझ इतना में आ लाइट, रहा है। जी 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 ब्रेथ फर्स्ट इतना टाइम लाइट हो नहीं सकता है। हाँ, एकदम ऐसा। एकदम एकदम ऐसा लगता है। हाँ, सर्दी नहीं है, लगता है हम्म, आप माने कैसे बोला माने सांस लेने छोड़ने की कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। स्लोली आता हाँ, है, स्लोली जाता है। हाँ, बहुत अच्छा, स्लीपी। बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी फर्स्ट टाइम गुड। थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मान कैसे सांस हम्म, लियो, कैसे छोड़ दूं। हम्म, तो हम्म, आपको जो बात सुना था मैंने जो हम्म, पहले जैसा किया मैंने हम्म, सेकंड दिए हम्म। उसकी तरह ही अनुलोम विलोम से करना है। जी, ठीक जी, है, जी। थैंक यू। वेरी गुड। Anybody else? Share your experience. सर 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 फर्स्ट बहुत हल्का हो गए। हाँ, मंदिरा जी, क्या बोले? सर बहुत हल्का हो गया हेड। सर हल्का हो गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। यस, यस, सर हेड फील राइट। हाँ जी, थोड़ा सा मैं बोलूं। जी। फर्स्ट टाइम वज्रासन में बैठा हूँ तो हम्म, सांस हम्म, हम्म। देन नहीं, आप क्या बोल रहे? बोल के समझाइए, ऐसे नहीं, बोल के समझाइए। हाँ, हाँ, चलिए, करिए, करते रहिए और करिए। वेरी गुड। कोई और बोलना चाहते हैं कुछ? Anybody else wants to say? आपका एक्सपीरियंस? नहीं? ओके, चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए, टेक्निक को अच्छे से समझिए। बिकॉज आज के बाद यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन, है ना? अभी तो मैं आपको गाइड करके बता सकता हूँ, तो आप करिए, पूरे अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट है मन में, मुझसे पूछिए, कोई भी क्वेश्चन है क्लैरिफाई कर लीजिए। चलिए करिए, प्रैक्टिस करिए, Sir, बहुत पावरफुल anybody चीज है। can do this? Yes, 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 of course, anybody can do this. But as usual, my standard caution is listen to your body. पहले अपने शरीर को सुनो। यदि शरीर इसमें खुश, कोई भी ब्रेथ में खुश नहीं हो रहा है, तो उसको रिलैक्स कर दो थोड़ा। बिकॉज वी डोंट नो, ह्यूमन बीइंग पे बहुत सारी चीजों का इफेक्ट होता है, माइंड का, फूड का, एनवायरनमेंट का, हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ जो चल रहा है। सो यदि कोई भी कारण से डिस्कम्फर्ट है, स्लो डाउन, टेक इट इजी, बट डोंट स्टॉप। आज नहीं कर पा रहे हो, कल फिर ट्राई करो, बिकॉज दीज आर वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अब आपको एक और बात समझाता हूं। अभी आपने अनुलोम विलोम जो किया, स्विचिंग फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल टू अनदर, ये सबके लिए नहीं होता। सम पीपल थिंक कि एक तरफ से नोज ब्लॉक्ड हो गया या दूसरी तरफ से नोज ब्लॉक्ड है, तो ये स्विच होता नहीं है इजिली। बट बिकॉज आपने थोड़ा सा हफिंग टेक्निक किया पहले, उसके बाद में कंप्लीट योगिक ब्रेथ किया, तो अब आपका नाड़ी थोड़ा खुल गया। सो इसलिए आप ये स्विच कर पा रहे हो आसानी से। अदरवाइज द स्विच वुड नॉट बी सो इजी। नाउ द स्विच इज इजी, you are getting the results. So continue to do this practice for a little longer. Observe, let your mind understand what to do, how to do. Let the questions arise. Ask me, मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए करिए, प्रैक्टिस करिए अपने आप।
सर जी नहीं मेरे तो सर्दी नहीं है, जी थोड़ा सा सांस अ, मैंने बोल रहा है वो जो सांस जो हम्म, छोड़ दिया हम्म, छोड़कर हम्म। स्लोली नो कि एक साथ में सांस छोड़ दे। वो स्लो भी छोड़ सकते हैं, एक साथ भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ओके यदि हाथ, इफ यू हैव इनफ टाइम, तब धीरे धीरे छोड़िए, कोई बात नहीं है, और भी अच्छा होगा इसका effect। सांस बहुत माने सीने से तो चाप लगना है, तो उसी तरह की मैंने मुंह से नहीं, माउथ से नहीं छोड़ा, माउथ से नहीं, खाली नोज, नोस्ट्रल से। ओके नॉस्ट्रिल थैंक यू जी सर जी, बहुत अच्छा लगा। बट दिस इज द क्लियर एंड फ्रेश लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। हेड भी क्लियर लगेगा, एकदम ब्रेथ भी लाइट, हाँ ब्रेथ भी बहुत लाइट लगेगा। जी बहुत अच्छा जरा सा प्रोग्राम हाँ, कराया जी आपने। जी आपको जी बहुत अनुज बहुत धन्यवाद सर। You have done a miracle today with me. अरे वाह, Finding अरे it so वाह, easy. I am finding it miracle. माने इतना अरे मेरा वाह, अभी क्लियर हुआ है, लंग वगैरह इतना इजी फील कर रहा हूँ, लाइट जी फील कर रहा हूँ। जी ग्रेट सर। जी। तो आपने श्वास को शुद्धि पहले नहीं किया था क्या? मैंने पहले किया था, आपके साथ एक बार किया था, बट आई जी डिडंट माने कंसंट्रेट दैट मच। ओके, दिस टाइम आई हैव दिस कंसंट्रेट। टाइम वेरी गुड, मैंने हाँ आपको बोला था सर कि मेरा जी 2023 जो है ना, पर्सनल ईयर 1, मैं इसमें सब कुछ हम्म, अचीव करूंगा। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम ए ऑल द बेस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड बास्कुलर रेमेडी प्रैक्टिशनर। वेरी गुड, वेरी गुड। I आई एम need to come to your house, sir. I need to come to your home. Invite me so that I talk to madam and we do some remedies for your son. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मैं बात करके बताता हूँ आपको। Okay, sir. जी आपने सर पहले भी बोला था, फिर आप भूल गए। हाँ जी 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 सर बताएं। जब जब सर्दी होगा मेरा स्टूडेंट से एक नाक बंद हो जाएगा, एक नाक खुला हम्म। रह जाएगा, तब कैसे करूं? तो पहले जब आप हफिंग टेक्निक करोगे, जी अच्छे से पूरा कर लोगे 5-5-5, फिर कंप्लीट योगिक ब्रेथ कर लोगे 5-5-5, इसका शुरू करेंगे तब तक ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा खुलने लग जाएगा नाक, थोड़ा और आगे जाएंगे तो खुल जाएगा। ठीक है कंप्लीट योगिक ब्रेथ में मैंने आपको फर्स्ट नहीं कल बताया था, जी कभी भी यदि आपको सर्दी जुकाम है, नोज ब्लॉक्ड है, जी कंप्लीट योगिक ब्रेथ 15 साइकिल करेंगे उसका ठीक से, तो कम से कम नाक खुल जाएगा, जी ब्रीदिंग विल बिकम इजी। सो जब आप ये सब कर रहे हो, और व्हेन यू कम टू दिस टेक्निक, द अनुलोम विलोम विद द कृष्णास फ्लूट मनूवर, तब तो रिजल्ट आपको सुपर मिल जाएगा। अभी बता रहे थे ना अनूप जी कि इतना क्लियर हो गया, इतना ब्रेथ इज सो लाइट, मिरेकल बोलते हैं। अनूप जी जी सर थैंक यू। सर दो नाक सर खुल गया सर, ये करने के बाद दोनों खुल गया ना? हाँ, Yes, sir. नहीं, Miracle. खुल सर फ्रेश खुल फील तो हो रहा है सर। आई फील लाइक डूइंग मेडिटेशन सर नाउ, मेडिटेशन yes, लाइक। very good, yes, this makes you feel meditative। राइट राइट बैठ जाइए मेडिटेशन में, क्या तकलीफ है, बहुत अच्छा है मेडिटेशन, तो बहुत अच्छा है। I feel like doing sir, I feel like doing meditation right now, means it is yes too yes much do light. it, do it ना, very good। सर ऐसे लग रहा है कभी दो नाक कभी खुल रहे नहीं, जी अभी तो धन्यवाद दो नाक भी इजीली खुल रहा है। जी। आप लोगों को जो प्रैक्टिस करके जो लाभ होता है, इसका वीडियो बना के भेजना चाहिए, 1 मिनट का वीडियो, कि आपने क्या प्रोग्राम किया, क्या प्रैक्टिस किया, Sir, I will इससे make it. आपको I will अच्छा make it थैंक tomorrow. जी, वेरी गुड। और इससे आपको ब्रेथ में क्या इंप्रूवमेंट आया, यदि आप वो शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच अनूप जी, सो काइंड ऑफ यू जी। तो आप लोग बना के भेजिए तो बहुत अच्छा होगा। जी सर हम्म, जी सर थैंक यू सर। नहीं नहीं, अभी करिए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा समय है, इसका लाभ उठाइए। वी हैव अनदर 10-15 मिनट्स, है ना? तो प्रैक्टिस करिए थोड़ा और। सर आपको मैं जरा एक तो देखाऊं है ठीक है। माने अभी मैं शुरू शुरू में जा करती हूँ से
say there. Amen. नहीं, मैं समझा नहीं थी। आप करिए अपना, आप करिए, स्वयं करिए और देखिए मन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। सोमा जी, एनी क्वेश्चंस? सर फर्स्ट में सर हपिंग प्रोसेस करके फिर नेक्स्ट सेकंड देन योगी कंप्लीट ब्रेथ, देन थर्ड में ये करना है ना? या आइडियली फॉर बिगिनर्स ये करिए। एक बार आप देखते हो कि आपका ब्रेथ अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नाक दोनों नॉस्ट्रिल अच्छे से चल रहा है, कोई सर्दी जुकाम नहीं है, तब सीधा अनुलोम विलोम विद द कृष्णास फ्लूट मैनूवर सीधा कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट थोड़े दिन तक तीनों करते रहिए सो दैट योर माइंड बिकम्स अवेयर कैसे करना, आदत हो जाए, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। फिर कभी सर्दी जुकाम हुआ, कभी कोई परेशानी है कोई भी कारण से, तो आप उसको करोगे तो और अच्छे से आपको हो नहीं सकेगा। समझे नहीं सुरजीत जी? कंफ्यूज हो गए हो आप? नहीं सर, मतलब सर एक्चुअली प्राणा जितना अच्छा रहेगा बॉडी में, दैट मच वी कैन कंट्रोल आवर वाइटलिटी सर, नो? जितना प्राण अच्छा रहेगा उतना हर चीज अच्छा रहेगा। Not only your mind, not only your physicality, every aspect of your life, हर organ, हर cell better function करेगा if you learn to breathe better. To breathe better is to live better. यदि अपने सांस को कोई अच्छा कर ले, पहले से improve कर ले, constantly improve कर ले, you can transform your life amazingly. Then sir I will have power to control everything, Yes. right sir? You will have power to control your inner processes first, Yes, and sir, then of maybe more, who knows? Very good. Kinkar ji, Sir? continue. बोलिए One question. जी। This yogic breath. So now we're doing it when consciously for certain time every day. But can you do it throughout the day whenever when I think of even walking, standing? Yes, of course. यदि पहला चीज है learn to belly breathe. If you have learned to belly breathe and then you start doing the complete yogic breath as you are walking, sitting, talking to somebody, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। प्राण, देखिए आप एक चीज को समझिए, मोस्ट पीपल उनका अटेंशन या तो उनके शरीर में है या उनके मन में है। मन है माने इमोशंस और थॉट्स, दीज टू थिंग्स आर कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ द पीपल। जिसका अटेंशन ज्यादा बॉडी में, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन फिजिकल थिंग्स, खाने में, सेक्स में, या ठंडा गर्म ज्यादा नहीं चाहिए। ही वांट्स कि थोड़ा गर्म ज्यादा हो जाएगा तो बोलेगा कितना गर्म हो गया, एयर कंडीशनर चलाओ। थोड़ा ठंडा ज्यादा हो जाएगा, बोलेगा कितना ठंडा हो गया, हीटर चलाओ, और समथिंग लाइक दैट। बट एज योर अटेंशन गोज अवे, प्राण में जब आपका अटेंशन आ गया, यू कैन मूव दिस एनर्जी, प्राण एनर्जी, स्ट्रेट टू योर विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश अन्नमय कोश से एनर्जी को चैनल करके विज्ञानमय कोश में ले जाएंगे आप। विज्ञानमय कोश में ले जाएंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। यू विल, जैसे नॉलेज, ऋषि लोग को जैसे नॉलेज आती थी, they could understand, they could see deeper. In fact, even in modern times, बहुत ऐसे, I think if I remember right, one Beethoven या Mozart, बहुत famous musician थे, very famous Western musician, वो बोलते थे that his music used to come to him in his dream. वो सोते सोते उनको म्यूजिक डाउनलोड करता था उनका बॉडी, and then he would write that music and it would be such a famous or powerful piece of music composition. लोग उनको इतना एडमायर करते थे। बट ये जो एक्सेस था, जो म्यूजिक उनको आता था, एज इफ यूनिवर्स में से कहीं से उनके अंदर में आ जा रहा है।
he only made himself in that position कि his body became like a receiver. So when your intellect body, when your Vijnanamay Kosh opens up, you are able to download information, you are able to download insights, सत्य अपने आप समझ में आने लग जाता है. तो जब ये सब, और क्या होता है, अब आपका यदि बॉडी में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है तो देन खाने में, सेक्स में, इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट नहीं है. You will not waste your energy for all these things. मन, कल क्या होगा, परसों क्या हुआ, उसने क्या बोला, इसने कैसे किया, your attention is not on this. Now your attention is on your intellect. You are getting, downloading from the universe. ये आनंद है. तो पहले प्राणमय कोश से आप कनेक्ट हो जाइए. जितना अपने ब्रेथ को आप वॉच करेंगे, उतना you will become connected to your energy body, प्राणमय कोश. And then प्राणमय कोश को आप डायरेक्ट कर लीजिए into your विज्ञानमय कोश. Your life will transform. सर एनर्जी को चैनलाइज करना होगा सर, मतलब कि इंटेलेक्चुअल थिंग में एनालाइज, मतलब चैनलाइज करना होगा एनर्जी को. मैं वही बता रहा हूँ. तो जैसे जैसे आपका अटेंशन आपके एनर्जी में आ गया, प्राणमय कोश में आ गया, और यू आर नॉट यूजिंग योर अटेंशन फॉर योर बॉडी और ऑन योर माइंड. माइंड क्या करता है? माइंड गोज टू द पास्ट और द फ्यूचर. इमोशंस, माइंड, ईगो, ये तीनों एक साथ में है. इमोशन, माइंड, ईगो, दे वर्क टुगेदर. व्हेन दे वर्क टुगेदर, इमोशंस आर यूजुअली अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. यदि आपको अभी कोई चीज से बुरा लग रहा है तो इसका भी कोई कनेक्शन पास्ट से है. किसी ने कुछ किया, कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो आपको ट्रिगर करता है. तो सम इमोशन बिकम्स व्हाट वी कॉल ए नेगेटिव इमोशन. जहां इमोशन है वहां आपका ईगो भी है. जहां आपका इमोशन और ईगो है, आपका माइंड वहीं पे अटक गया. माइंड बहुत पावरफुल चीज है, बट यदि आपका माइंड आपके अगेंस्ट में काम करेगा, देन नोबडी इन दिस यूनिवर्स कैन हेल्प यू. नथिंग कैन हेल्प यू. तो पहले अपने माइंड को कंट्रोल में लीजिए. माइंड को कंट्रोल में लेने का सबसे आसान तरीका है बिकम अ ब्रेथ वॉचर. अपने एनर्जी बॉडी, अपने श्वास पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए. धीरे धीरे क्रियाएं होती हैं जिससे आप अपनी एनर्जी को, अभी जो अपन करते हैं ना, मैं बताता हूं ना बार बार, मूव योर ब्रेथ अप द स्पाइन, मूव योर ब्रेथ अप द स्पाइन. दिस इज क्रिएटिंग योर चैनल, जिससे आपकी ऊर्जा सुषुम्न से ऊपर की तरफ जाएगी. सुषुम्न से आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी. चीज को समझिए, बहुत आसान चीज है. योग विद्या, चक्र, इनका नॉलेज बहुत सिंपल है. यदि अब ये सोचिए कि 7 मंजिल, 7 तल्ला की बिल्डिंग है. एक तल्ला से आपको जो दिखेगा, सेकंड तल्ला से आपको कुछ दूसरा दिखेगा, तीसरे तल्ले से और भी कुछ तीसरा दिखेगा, चौथे तल्ले से आपको और भी ज्यादा दिखेगा, पांचवें छठे में आ जाओगे तो आपको खुला आकाश दिखेगा. आपके 7 चक्रों को भी आप ऐसे ही देखिए. जब आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा मूलाधार में है, तब आपका इंटरेस्ट इसी में है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, हाउ टू सर्वाइव इन दिस लाइफ. सारे एनिमल्स करते हैं, उनकी ऊर्जा मूलाधार में ही तो अटकी पड़ी रहती है. मूलाधार और थोड़ा स्वादिष्ठान. स्वादिष्ठान में प्रोक्रिएशन, जिससे बच्चे पैदा हों, जिससे उनका वंश चलता रहे या उनकी स्पीशीज चलती रहे. इंटरेस्ट इज इन दीज टू थिंग्स. अपना भी जब एनर्जी इज इन द स्वादिष्ठान, तब आवर इंटरेस्ट इज मोर ऑन फिजिकल मैटर्स, सेक्स फॉर एग्जाम्पल, एटसेट्रा. इससे कनेक्टेड प्लेजर, फिजिकल थिंग्स में. ऊपर आता है मणिपुरा में. नाउ योर इंटरेस्ट इज अ लिटिल वाइडर. You are more interested in your family, in society.
उनके ऊपर ध्यान जाएगा, उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। और ऊपर आएगा अनाहट में, आपको बाकी सब चीजों के लिए प्रेम का फीलिंग आएगा। यू विल एक्सेप्ट मोर, यू विल बी लेस कंसर्न मैं कैसे सरवाइव करूं। नाउ योर थिंकिंग इज चेंजिंग, आपको दूसरा अलग माला में आओगे, अलग तल्ले में आओगे, अलग दिखता है आपको। सिमिलरली विशुद्धि में आप आ जाओगे, तब आपकी और चेंज हो जाएगी। यू विल नॉट ओनली डिफरेंट क्रीचर्स, दुनिया में हर चीज को आप अपना समझने लग जाओगे। उसके लिए कुछ प्रेम भावना, कुछ सोच, उनके लिए कुछ करोगे, उनके लिए लिखोगे, उनके लिए whatever little you will do in your own way, but they will be part of your consciousness. आज्ञा में आ जाएगा तो क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत चीजें साफ समझ में आने लग जाएंगी। और जब आज्ञा में आ गए, सब चीज साफ समझने में आ गई, तो फिर नेक्स्ट सहस्रार। सहस्रार में सब तो एक है, यस है ये। सब तो एक है, बस ये तो एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना एक अलग है, और एक एक्सपीरियंस में होना एक अलग चीज है। किंतु जब तक आप इस जीवन में हैं, आपको फिजिकल बॉडी भी चलाना है, आपको फैमिली को भी चलाना है, आपको सोसाइटी को भी चलाना है, सब में तो कुछ कुछ करना है आपको। तो आपकी एनर्जी जितने आराम से फ्लो करेगी, हर चक्र में आराम से जाएगी, तो आपको सब चीज इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। आप हर जगह अच्छे से एक्शन कर पाओगे। यही है। तो आपका सुषुम्न खुलने लग गया। अब आपने अपने एनर्जी को सुषुम्न से लिफ्ट में डाल दिया। अब आप एक माला में जा सकते हो, दूसरे में जा सकते हो, तीसरे में जा सकते हो, पांचवें में। यू कैन गो टू एनी फ्लोर। वंस द सुषुम्ना इज ओपन, डज द सुषुम्ना ओपन इन वन डे? नो। एक बार खुल गया तो डज इट ऑलवेज स्टे ओपन? नो। यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन इट। जैसे अपने घर में डेली खिड़की खुलती है, धूला आता है, वी हैव टू क्लियर, वी हैव टू स्वीप, जो भी धूला है उसको निकालना है। 10 दिन नहीं करेंगे तो धूला ज्यादा हो जाएगा। सेम थिंग विल हैपन विथ योर सुषुम्ना। सो इफ यू कंटिन्यू टू डू योर ब्रेथ वर्क, योर क्लेंजिंग एंड सो ऑन, सुषुम्ना एक्टिव रहेगा, आपकी एनर्जी आराम से ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। एनर्जी आराम से ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी, you will be in a position to achieve much more than you were able to achieve earlier. क्लैरिटी आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी, बिकॉज अब आपको छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एक रोटी अच्छी लगी तो 4 रोटी खा लेता हूँ आज। नहीं, एक रोटी में आ गया ना, आनंद आ गया, यू एंजॉयड इट इनफ, नो नीड टू हैव 4 रोटीज। Similarly with other aspects, your mind is not concerned उसने क्या बोल दिया, उसने मेरे को गाली क्यों दे दी, उसने मेरे को गाली दे दी और मेरे को गुस्सा आ रहा है, एंड आई वांट टू हर्ट हिम, आई गिव हिम मोर अब्यूज। क्या यार, किस लिए यार? दे दी ना। रास्ते में जाते तो कितने कुत्ते भौंकते हैं, हम कुत्ते से झगड़ा थोड़ी करते हैं। बोल दिया, किसी ने बोल दिया, हाउ डज इट मैटर? So you are not concerned with little things like this. Your energy is moving somewhere else. आप 7वीं माला की तरफ जा रहे हो, 5वीं, 6ठी, 7वीं माला की तरफ जा रहे हो, तो keep raising your vibrations, keep raising yourself. आपका जीवन और ब्यूटीफुल होता जाएगा। जो आपका पहले इंटरेस्ट इस खाली हाउ डू आई सर्वाइव, मैं अपने जीवन कैसे चलाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे अपनी नीड्स को मीट करूं, अब वो थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और कुछ करेंगे, थोड़ा दुनिया के लिए भी कुछ करेंगे, सब ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे आप चेंज होंगे, आपका इम्पैक्ट होने लगेगा दूसरों पे, लोग आपको एक दूसरी नजर से देखेंगे, वो आपको दूसरी नजर से देखेंगे, आपकी एनर्जी और बढ़ेगी, आप और अच्छा करेंगे। दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, है ना? दिस इज हाउ ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। ट्रांसफॉर्म करना, तो ये जो एनिमल्स की बात बताई मैंने आपको, एनिमल्स के पास में एनर्जी बहुत होती है ना, बट उनका चेतना का लेवल, कॉन्शियसनेस लेवल इज लो, सो दे आर नॉट एबल टू डू मच।
they are not able to change their consciousness by their own attention or their own willingness. यदि कोई जानवर होते हैं, उनमें भी अच्छी चेतना होती है, ऐसा नहीं कि उनकी चेतना कभी अच्छी नहीं होती है. There are many examples of animals who've shown a high level of consciousness in their own way. किसी को चोट लगी हुई है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, they can understand it. They will, जैसे घर में कुत्ते होते हैं, they understand a lot sometimes, है ना? आप लोग जानते हो, they know so much. तो उनकी चेतना ऐसी नहीं कि एकदम लोवेस्ट लेवल की है, थोड़ी हाई लेवल की भी चेतना है, बट दे कैनॉट कॉन्शियसली डू एनीथिंग टू चेंज द चेतना. इंसान, मनुष्य ही खाली एक है जो कॉन्शियसली अपनी चेतना को बदल सकता है. चेतना दो ही तो चीज है, शिवा और शक्ति, दो ही चीज है. शिवा माने चेतना, शक्ति माने एनर्जी. और जब शिवा और शक्ति मिल जाते हैं तब लाइफ हो जाती है, देन देयर इज लाइफ. जब तक शिवा शक्ति नहीं मिलते तब तक लाइफ नहीं है. और जब शिवा शक्ति माउंट कैलाश में मिल जाते हैं तब फिर आनंद, सच्चिद आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम. एंड दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनीबॉडी. आपके अंदर में ही शिव है, आपके अंदर में ही शक्ति है. तो ये जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, इसको ऊपर जाने का रास्ता आपका सुषुम्ना है, और ये आपका कैलाश है, सहस्रार. यही शिवा का अबोध है. यहीं तक आपकी शक्ति वहां तक चली जाएगी, आप भी बन जाओगे सच्चिद आनंद. दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्स फॉर अ ह्यूमन बीइंग. अब मजे की चीज देखिए, इसको होने के लिए आपके पास ऊर्जा चाहिए, एनर्जी, शक्ति चाहिए, शक्ति. तो ये शक्ति बहुत तरह से लीक होती है. सबसे पहले तो लीकेज इसकी होती है थ्रू सेक्स, मैक्सिमम लीकेज. क्योंकि जहां सेक्स में लोगों का इंटरेस्ट आ गया, इट इज अ वेरी प्लेजरेबल थिंग, है ना? तो आजकल क्या करते हैं बच्चे, तो बेचारे 20, 22, 25 वर्ष के बच्चे पोर्नोग्राफी देखते हैं, मैस्टरबेशन करते हैं, सारी की सारी अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट कर देते हैं. अब वो एनर्जी, ये जब एनर्जी लीक हो गई, डिप्लीट हो गई, तब आप ऊपर क्या लेके जाओगे? फिर क्या बचा? अच्छा, बचपन में इतनी समझ नहीं होती है कि कैसे करें. बट बाय द वे, ये जब बात चल रही है तो मैं ब्रेथवर्क टेक्निक्स सिखाता हूं. आई टीच ब्रेथवर्क टेक्निक्स, जिससे इवन अ 60 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, जिसकी एनर्जी खत्म हो गई है, मैन वुमन बोथ, दे आर एबल टू इंक्रीज दिस एनर्जी अगेन. वो सेक्सुअल एनर्जी को फिर से इंक्रीज करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं. मैं सिखाता हूं, इसकी क्लासेस कराता हूं मैं. एंड 60 somebody with 10 years of ED माने इरेक्टाइल डिसफंक्शन. एक अभी कोर्स चल रहा है जिसमें 74 ईयर ओल्ड मैन, उनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है. अभी तक ही इज नॉट क्योर्ड, बट इंप्रूवमेंट इज बिगिनिंग टू शो. 74 years old, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, बट हिज एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी इज कमिंग बैक. नाउ सेक्सुअल एनर्जी कुंडलिनी का सबसे बड़ा expression. Sexual energy is the biggest expression of Kundalini energy. Kundalini energy माने क्या होता है? अपन जो कुछ भी करते हैं उसमें एक कुंडलिनी एनर्जी का रोल है. किंतु जब ये कुंडलिनी एनर्जी और पावरफुल हो जाती है, then we acknowledge her as कुंडलिनी, as मां शक्ति. इसको लाइफ, दुनिया में लिविंग बीइंग के लिए सेक्सुअल एनर्जी से बड़ी कोई एनर्जी नहीं है. दिस इज व्हाट मेक्स लाइफ कंटिन्यू. इसके बिना जीवन नहीं चलेगा. इसी से जीवन चलता है, इसी से मां अपने बच्चों को पालती है, रक्षा करती है, बढ़ाती है. तो ये एनर्जी जब डिप्लीट हो जाती है, देन अ पर्सन becomes not capable of doing much. बट यदि वो एनर्जी वापस से उसको मिल जाए, नाउ
जैसे जैसे कोई की 40-50 वर्ष की आयु हो गई, थोड़ी चेतना इंप्रूव हुई है, बट अब उस चेतना को चलाने के लिए एनर्जी तो बाकी नहीं है। सो इफ दे डू प्रोग्राम्स जिससे वो एनर्जी बढ़ती है, देन दे आर एबल टू कंबाइन देयर शिव शक्ति मोर, मूव टुवर्ड्स दैट हायर रियलाइजेशन। तो यही खेला है, शिव शक्ति, दो ही तो चीजें हैं। इनको दोनों को मिला के रखिए, चला के रखिए, and see what magic you can do in your life. Any question? Any question, any doubt? So, sir, by doing all these techniques that you taught for last 3 days, so we can replenish our Kundalini Shakti, right? See, अभी कल शायद मैंने लोगों से पूछा था कि जब आप ये करते हो तो आपको कोई सेंसेशन होता है क्या? किसी ने बोला आई फील हीट इन द मूलाधार एरिया। ये सब दीज आर साइंस दैट देयर इज एक्टिवेशन, चक्र एक्टिवेशन गोइंग ऑन। ये चक्र एक्टिवेशन हो रहा माने अब ये रास्ता खुल रहा फॉर योर कुंडलिनी टू मूव। यदि आपका बहुतों में होता है कि कुंडलिनी थोड़ी जग गई, बट वो आके यदि स्वादिष्ठान में अटक जाएगी तो सच अ पर्सन विल गो क्रेजी आफ्टर सेक्स, बिकॉज उसकी एनर्जी वहां पे अटक गई है। ही कैन नॉट टेक इट हायर। वो दूसरी तरफ ऊंचा उठा के उसका दूसरा लाभ उठा ही नहीं पाएगा। कुछ लोगों की ऐसी जगह अटक जाती है, वो ऐसे बोलने लग जाते कि जैसे आई एम गॉड, मैं भगवान हूं, मेरे को पूजो, मेरी पूजा करो। दे एक्ट टोटली इरैशनल, इम्बैलेंस्ड बिहेवियर। उनकी कुंडलिनी कहीं पे अटक गई है। किंतु यदि आपका सुषुम्ना खुला है, एक्टिव है, तो इस एनर्जी को चलने के लिए एक रास्ता मिल गया। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति वॉन्ट्स नथिंग मोर देन शिवा। शक्ति को खोज है शिव की। शिव ऑन हिज ओन, शिवा इज नथिंग। चेतना विदाउट शक्ति इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये शिव को जब शक्ति मिलती है तभी शिव, ये बोलना भी गलत है क्योंकि शिव और शक्ति हमेशा साथ ही हैं। ऐसा नहीं कि शिव और शक्ति अलग है, ऐसा भी नहीं है। किंतु समझने के लिए शिव और शक्ति साथ रहते तभी सब कुछ होता है। शक्ति को खोज शिवा की है, दैट्स ऑल। तो आपका सुषुम्ना खुला है, आपकी शक्ति शिव की तरफ जाती जाएगी, उठती जाएगी सहस्रार तक। चलिए अब आज्ञा दें। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सर। सर फिर मेरा मिलेंगे। एक बात था सर। हेलो जी बताएं आप जी यहाँ जी बोलिए। सर, आपको थोड़ा मेरा ऊपर गुस्सा आ जाएगा तो क्योंकि मेरा वो जो फ्राइडे और सैटरडे जो क्लास हुआ था उसमें ठीक से मैं कंसंट्रेट नहीं करने पाई, क्योंकि मेरा थोड़ा वो एमआर वैक्सीन चल रहा है ना, वो गवर्नमेंट जो प्रोसीड्यूर उसका बच्चे लोग का, उसमें थोड़ा मेरा ड्यूटी था। आते आते 8:30-9 बज गया, तो उसी ऑफिस से ही मैंने ज्वाइन किया, ठीक से नहीं हुआ। तो मैं वो डाउनलोड में मिल सकेंगे सर वो क्लास का जो वीडियो? है मेरे पास है। मैं YouTube में देखिए पहले दिन का क्लास भी ग्रुप में शेयर किया, नेक्स्ट दिन का क्लास में मैं शेयर कर रहा हूँ, आज का क्लास भी मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू नयन जी। आप लोग ना एक काम कीजिए, आप लोग एक मिनट का सब वीडियो बना के मुझे दीजिए, मैं राजेश जी को दे दूंगा। नहीं तो आपका राजेश जी का कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, लेके राजेश जी को भी भेज दीजिए कि आप कौन सा बैच का है, कहाँ से कोर्स किया, कहाँ से कोर्स कर रहा है, और आपका एक्सपीरियंस कैसे लगा, ये आप जरूर मुझे फीडबैक राजेश जी को भी दे सकते हैं, मुझे भी दीजिए, है ना जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच नयन जी। मैंने नंबर भेज दिया मेरा। हाँ, बहुत अच्छा किया राजेश जी। आपका बहुत मैं आभारी हूँ एक्चुअली। जी बहुत आभारी हूँ। इतना अब जो सिखाया, रियली पूरा हृदय से मैं आपको ये करूंगा। बहुत लोगों को अच्छा वो बेनिफिट मिला है मुझे, वो ग्रुप में सब दिया, मैं आपको भी भेजा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर नेक्स्ट बैच में ये हो तो आप जरूर आइए, वैसे के साथ
क्योंकि गुरुजी का यही सपना है कि कम से कम कलकत्ता में एक अच्छा योग का जो ये है वातावरण कलकत्ता जी। में ज्यादातर हो जाए, क्योंकि जी जितना सारी योग का जो मास्टर्स है यहाँ से ही गया। जी गुरुजी जी बहुत हाँ जी हाँ, कलकत्ता से बहुत बड़े बड़े निकले हैं। तो हाँ, गुरुजी का भी स्वामी विवेकानंद जी निकले हैं, आपके लाहिरी महाशय, परमहंस योगानंद, बहुत निकले हैं। बहुत बहुत औरोबिंदो, कितने श्री कितने निकले। अरबिंदो, हाँ, शिवानंद श्री अरबिंदो, सरस्वती। शिवानंद सरस्वती, हाँ, ये भूमि हैज बीन वेरी वेरी फर्टाइल यस यस। और एक है स्पिरिचुअली। राजेश जी, और एक मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि बांग्लादेश से भी बहुत सारी पार्टिसिपेंट जुड़ा हुआ है, जी तो वो जी लोग भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया मेरे साथ, मुझे भी पर्सनली चैट भेजा है, उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा। और जी मैं जो आपका जो ये है, मैं हर ग्रुप में मैं भेजा, मैं और जी भी जो 2-4 ग्रुप में भेज दूंगा, और मेरा जो प्रीवियस बैच का स्टूडेंट है, ठीक है ना, जी जी तो बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बोलने का धन्यवाद, आपने मुझे चांस दिया ये करने का। मैं भी आभारी हूँ। थैंक यू। अच्छा। और सर राजेश बहुत जी ही आप आते रहिए सेंटर में। ओविजित दा भी आऊंगा बहुत इंटरेस्टेड है, आज भी उनके साथ मेरा बात हुआ। जी जी, ठीक अवश्य है ना? आऊंगा। हाँ, आते रहूंगा जी। और साहब आपको एक मिनट वीडियो करके भेज दीजिए राजेश जी को, ग्रुप में भी भेज दीजिए, बहुत जी अच्छा। जी जी, बहुत वेरी अच्छा गुरुजी, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सर अच्छा धन्यवाद। है। थैंक यू। अच्छा लगा मैं सर। बांग्लादेशी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ। अरे वाह, अरे वाह, ठीक है, थैंक यू अफरोज, थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जय बोलना बाबा तो हेलो। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद नयन जी, एंड ऑफ कोर्स गुरु जी को तो धन्यवाद है ही, एंड टू हाँ एस सर। हाँ, थैंक यू। नमस्ते, राम राम।